تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی کے بورڈ ممبران سے ملاقات کی۔ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور یونیورسٹی کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی کے بورڈ ممبران سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آئی ٹی منسٹر ڈی سریدھر بابو، یونیورسٹی بورڈ کے چیئرمین آنند ماہی و دیگر بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام دارالسلام میں جمعہ اور ہفتے کو منعقد 2 روزہ جشن رحمت العالمین کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ منتظمین نے شمع محمدی کے پروانوں سے زیادہ تعداد میں شرکت کی خواہش کی۔ بیسٹ اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی زیر نگرانی پارٹی دفتر دارالسلام میں جمعہ اور ہفتہ یعنی 20 اور 21 ستمبر کو 2 روزہ جشن رحمت العالمین منعقد ہو رہا ہے۔ 20 ستمبر کو بعد نماز عشاء دارالسلام میں جلسہ رحمت العالمین منعقد ہوگا۔ مہمان مقرر مولانا محمد ہاشم اشرفی کانپوری، شیخ الجامعہ اسلامیہ اشرف المدارس کانپور کے علاوہ مولانا مفتی خلیل احمد، شیخ الجامعہ نظامیہ مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری، مولانا ڈاکٹر احسن بن محمد الحمومی، مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا و دیگر خطاب کریں گے۔ ہفتہ 21 ستمبر کو بعد نماز عشاء دارالسلام میں کل ہند نعتیہ مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے۔ سردار سلیم معتمد شاعرہ ہوں گے۔ اس مشاعرے میں مہمان شعراء منظر بھوپالی، ڈاکٹر جلیل برہان پوری، ڈاکٹر ضیاء عرفان بارہ بنکی، ڈاکٹر انجم افسر ڈنکی، جمیل خیرآبادی و دیگر ممتاز مقامی شعراء اکرام بارگاہ رسالت میں مضموم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ جعفر حسین معراج، رکن اسمبلی یاقوت پورہ و صدر استقبالیہ، اور سید احمد پاشا قادری، معتمد عمومی و سابق MLA نے شمع محمدی کے پروانوں سے زیادہ تعداد میں 2 روزہ جشن رحمت العالمین میں شرکت کرنے کی اپیل کی ہے۔ حیدرآباد میں مرکزی میلاد جلوس کے موقع پر پولیس کمشنر CV آنند و دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے تاریخی چار مینار کا دورہ کیا۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حیدرآباد میں جمعرات کو مرکزی میلاد جلوس نکالا گیا۔ چونکہ مرکزی میلاد جلوس کا آغاز تاریخی چار مینار کے دامن سے ہوا، پولیس کی جانب سے اس موقع پر وسیع تر انتظامات کیے گئے۔ دریں اثنا حیدرآباد پولیس کمشنر CV آنند، DCP ساؤتھ زون، DCP ساؤتھ ایسٹ زون و دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے تاریخی چار مینار کا دورہ کرتے ہوئے جلوس کے موقع پر کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا، عہدیداروں سے تفصیلات بھی حاصل کی۔ کاغذ نگر میں جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا گیا۔ علماء اکرام بشمول نوجوانوں اور بچوں کی کثیر تعداد نے جلوس میں شامل ہو کر نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کی۔ کاغذ نگر کے علماء اکرام کے زیر سرپرستی SPM جامع مسجد کمیٹی، عیدگاہ کمیٹی اور میلاد النبی اڈاک کمیٹی کے صدر عبدالقدیر و دیگر کی نگرانی میں جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز ظہر SPM جامع مسجد سے نکالا گیا۔ جلوس طیبہ نگر کالونی، اولڈ مدو ہاسپٹل، مسجد قریش سے اور دیگر راستوں سے گزرتا ہوا نماز عصر کے موقع پر دوبارہ SPM جامع مسجد کو پہنچ کر ختم ہوا۔ جلوس میں علماء اکرام کے علاوہ نوجوانوں اور بچوں کی کثیر تعداد نے حصہ لیا اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کی۔ جلوس کے اختتام پر SPM جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا انتخاب عالم نے کہا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی جا رہی ہے، لیکن ہمیں صرف میلاد منانے کی حد تک محدود نہیں رہنا ہے، بلکہ آقا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں سنوارنے کی کوشش کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیاوی اور آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ جلوس میں SPM جامع مسجد کے صدر شیخ حاجی، جنرل سیکرٹری محمود بیگ، حافظ کبیر صابری، صوفی افضل، AIMIM ٹاؤن پریزیڈنٹ عبد المبین، مساجد کے صدور اسرار احمد، متین پاشا و دیگر نے شرکت کی۔
शादनगर कस्बे में आरटीसी बसों की अदम दस्तयाबी पर तलबा ने सड़क पर एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया है कि शादनगर कस्बे में आरटीसी बसों की अदम दस्तयाबी से परेशान तलबा ने जुमेरात को सड़क पर एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना था कि बसें वक्त पर नहीं आ रही है और उनके गांव में बसें दस्तयाब ना होने की वजह से स्कूल और कॉलेजेस जाने वाले तलबा व तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजी तलबा का कहना था कि वो इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा हुकाम से बारहा रुजू हो चुके हैं और अपनी परेशानियों से वाकिफ़ करवा चुके हैं। इसके बावजूद भी आरटीसी के एमडी की जानिब से और दीगर ज़िम्मेदारान की जानिब से उनके मसाइल को हल नहीं किया जा रहा है। एहतजाजी तलबा ने मुताल्लिक़ा हुकाम से उनके मसले को फौरी तौर पर हल करने और बसें मुहैया करवाने का मुतालबा किया है। ప్రభుత్వంలో నేడు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో అది ఎన్నికల కంటే ముందు 6 గ్యారంటీలతో ప్రజల్లోకి చైతన్యం చేయడం జరిగింది. ఆగా ఫ్రీ బస్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంది. కాబట్టి ఏదైతే ఫ్రీ బస్సులు అమల్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి పేద విద్యార్థులకు కావచ్చు, గవర్నమెంట్ లో చదివే విద్యార్థులకు కావచ్చు, ప్రైవేట్ పిల్లలకు కావచ్చు, ఎవరికైనా సరే సరైన సమయానికి బస్సులు రాక కాలేజీలో ఒక్కొక్క క్లాస్ మిస్ అయితే ఒక్క ఫస్ట్ పీరియడ్ అనేది మిస్ కావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇలా మిస్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎంట్రీ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఏదైతే ఉందో అది అర్థం కాకుండా ఎంతో మంది విద్యార్థులు ఇలా గవర్నమెంట్ లో చదువుతున్న విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతారు. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఊర్లలో పంపించే బస్సులు బంద్ చేసి మన హైదరాబాద్ కావచ్చు, మాబ్నర్ సైడ్ కావచ్చు, ఇక్కడ సైడ్ వేసి ఊర్లలో పల్లెటూర్లకు కావచ్చు, చిన్న చిన్న గ్రామాలకు కావచ్చు, ఆ గ్రామాలకు బస్సులు పంపకుండా నేడు పిల్లలని 10-10:30 అవుతున్నా కూడా అదే బస్ స్టాండ్ లో నిల్చోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారో రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాము. ఏదైతే ఫ్రీ బస్ అని చెప్పి అమలు చేసిరో అంతే అధికారంతో మీరు అనేక బస్సులు ప్రొవైడ్ చేసి పేద విద్యార్థులు కావచ్చు, అనేక ఊర్ల గ్రామ ప్రజలు కావచ్చు సదుపాయం అనేక విధాలుగా బస్ సమస్యలు తీరేటట్టుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే బస్సులు సమయం రాకపోతే గ్రామ ప్రజలు గాని, ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో గాని, గవర్నమెంట్ స్కూళ్లలో గాని పేద విద్యార్థులు విద్యను దూరం చేస్తున్న రోజులు కనబడతా ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత బస్సుతో అనేక సమస్యలు ముడిపడి ఉన్నాయి. పేద పిల్లలకు చాలా విద్య అంటే మేము దీనికి ఎంకరేజ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఫ్రీ బస్సులు పెట్టిరు, దానికి మేము కాదని అంటలేం. కానీ అనేక బస్సులు ప్రొవైడ్ చేసి విద్యార్థుల సమస్యలు ఏవైతున్నాయో విద్యార్థులకు ఇబ్బంది కాకుండా ఉండాలి. అలాగే ఫ్రీ బస్సులు పెట్టిన తర్వాత కండక్టర్లు కావచ్చు, డ్రైవర్లు కావచ్చు, పిల్లల పట్ల దురుసుగా మాట్లాడడం గాని, ఆధార్ కార్డు లేకపోతే తిట్టడం గాని, వాళ్ళతో విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తిస్తా ఉన్నారు. బస్సులలో సీటింగ్ కెపాసిటీ 60 నుంచి 70 వరకు ఉంటే ఒక్క బస్సులో 2 బస్సులు అడ్డే మంది అంతగా ఎక్కించి అనేక ప్రజలకి యాక్సిడెంట్లు చూసుకుంటాం. రోజు ఎక్స్ప్రెస్ బైపాస్ कुल हिंद मजलिस तामीर मिलत के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान पैमाने पर यौम रहमतुल आलमीन और यौम सहाबा का इनेकाद अमल में आ रहा है। मुंतज़मीन ने आमतुल मुस्लिमीन के बशमूल ख़वातीन और तालिबात से शिरकत की गुजारिश की है। कुल हिंद मजलिस तामीर मिलत के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी अज़ीमुश्शान पैमाने पर यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम सहाबा का एहतमाम किया जा रहा है। मुंतज़मीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गणेश जुलूस के पेश नज़र पुलिस की इजाज़त न मिलने पर 75वां यौम रहमतुल आलमीन और 46वें यौम सहाबा को एक हफ्ते बाद यानी 22 और 23 सितंबर को मुनक़िद करने का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि 75वां यौम रहमतुल आलमीन इतवार 22 सितंबर को 9 बजे दिन नुमाइश ग्राउंड में अज़ीमुश्शान पैमाने पर मनाया जाएगा, जबकि 46वां यौम सहाबा 23 सितंबर बरोज़ पीर को 8:30 पर चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद किया जाएगा। दोनों जलसों की निगरानी सदर तंजीम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर करेंगे। मुल्क के मुमताज़ उलमाए कराम और दानिशवरान के अलावा मुकामी उलमाए कराम भी जलसे को मुखातिब करेंगे। ज़िम्मेदारान ने बताया कि दोनों जलसों में ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल इंतज़ाम किया गया है। मेहमान मुक़र्ररीन की तफ़सीलात कुछ इस तरह से रहेंगी। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी रुकन पार्लियामेंट व इमाम मुज्द पार्लियामेंट हाउस यूपी के अलावा मौलाना अबू तालिब रहमानी रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मोहम्मद अदीब साबिक़ रुकन राज्यसभा और मुक़ामी मुक़र्ररीन मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना डॉक्टर एहसान बिन अल-हमूमी, हज़रत मौलाना हुसामुद्दीन सानी, जाफ़र पाशा अमीर मिल्लत इस्लामिया और वो दीगर जलसे को मुखातिब करेंगे।
हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने आपके सामने रखें कि होने वाले 75वें योम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिसका आगाज़ जो है सैयद खलील हुसैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किया था, और उसके न सिर्फ दक्कन में बल्कि सारे हिंदुस्तान में उसके असरात पाए जाते हैं। और यहाँ जो मौजूद हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे उनके शागिर्द हैं, खलील हुसैनी साहब के, उनके चाहने वाले हैं, और यकीनन उनका वो तड़पता हुआ दिल मिल्लत इस्लामिया के लिए जो रहा है, आप तमाम लोग बखूबी उससे वाकिफ़ हैं। हमारे सदर इस्तक़बालिया डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब भी इस जलसे के इस्तक़बालिया खुतबा देंगे, और दीगर उलमाए कराम और जो मुखातिब करने वाले हैं, हमारे उमर शफीक जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद मस्जिद तामीरत ने भी आपको बता दिया है। अब मज़ीद कुछ कहना तकरार होगी, लेकिन आप लोगों से जो ताख़ीर हुई है उसके हम लिए माज़रत ख़्वाह हैं। इंशाअल्लाह हम आपके ताउन से इस जलसे को हमेशा की तरह कामयाबी से हमकिनार करेंगे। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याक़ूतपुरा रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने सिलाई मशीन तक़सीम प्रोग्राम में हिस्सा लेकर ख़वातीन में सिलाई मशीनें तक़सीम की। तफ़सीलात के मुताबिक सादिक सिराज के ज़ेर एहतमाम सिलाई मशीन तक़सीम प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याक़ूतपुरा एमएलए जाफ़र हुसैन मेराज ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में लाई। आपको बता दें कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले तरबियती मराकज़ के ज़रिए ख़वातीन ने तरबियत हासिल की है, और मजलिस के इस इक़दाम से ज़रूरतमंद ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो रही हैं। जाफ़र हुसैन मेराज के हाथों कुल 75 सिलाई मशीनें तक़सीम की गई। इस मौके पर यूथ लीडर यासिर अरफात व दीगर मौजूद थे। आसिफाबाद ज़िले में तेलंगाना आदर्श स्कूल के तलबा असातिज़ा की तक़र्रुरी का मुतालबा करते हुए सड़कों पर उतर आए। हुकूमत से उनके मुस्तक़बिल को तारीक न करने और जल्द अज जल्द असातिज़ा के तक़र्रुरात करने का मुतालबा किया। ज़राए ने बताया कि आसिफाबाद ज़िला हेडक्वार्टर में तेलंगाना आदर्श स्कूल के तलबा ने जुमेरात को शदीद एहतजाज दर्ज करवाया, क्योंकि असातिज़ा की अदम मौजूदगी की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। बताया गया है कि हाल ही में 17 असातिज़ा का तबादला कर दिया गया है और स्कूल में सिर्फ 2 असातिज़ा ही रह गए हैं। तलबा ने एक बड़ी रैली निकाली और सड़क पर धरना मुनज़्ज़म किया। 10वीं जमात में पढ़ने वाले तलबा ने तशवीश का इजहार किया है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से ना तो असातिज़ा मौजूद हैं और ना ही उनकी क्लासेस ली जा रही हैं। एक ऐसे वक्त में जब इम्तिहानात करीब हैं, उन्हें तालीम नहीं दी जा रही है। उन्होंने पूछा है कि अगर उनकी क्लासेस नहीं ली जाएंगी तो इम्तिहानात में किस तरह से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मुताल्लिक़ा हुकाम से इस सिलसिले में पहल करने और असातिज़ा का जल्द अज जल्द तक़र्रुर करने का मुतालबा किया है। 10वीं जमात के तलबा ने हुकूमत से ये मांग की है कि वो उनके मुस्तक़बिल को तारीक ना करें और जल्द अज जल्द असातिज़ा के तक़र्रुर को यकीनी बनाएं। तलबा के तकरीबन 2 घंटे तक सड़क पर एहतजाज करने की वजह से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम देखा गया। చదువుతున్నా మా కాలేజ్ నుంచి 70 మెంబర్స్ టీచర్స్ వెళ్ళారు, కానీ వచ్చింది 2 మెంబర్స్. మా భవిష్యత్తుకి బాధ్యులు ఎవరు? మేము ఫెయిల్ అయితే ఎవరు? ఫెయిల్ అయితే ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ? మా భవిష్యత్తుకి అసలు ఏము? మనం వచ్చింది మాత్రం మిగతా టీచర్సే. మాకు క్లాసెస్ కూడా జరుగుతలేవు. ఇప్పటికి మేము 3 డేస్ వెయిట్ చేసినాం. మేము ఫెయిల్ అయితే ఎట్లా? ఎవరు బాధ్యులు? रियासत तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले में 9वीं जमात की तालिबा को एक नाज़ेबा पैगाम भेजने वाले वार्डन को तालिबा के वालिदैन और रिश्तेदारों ने बुरी तरह से जद को किया। इंतज़ामिया से वार्डन को बरतरफ करने की भी मांग की। ज़राए ने बताया कि महबूबाबाद के गादे रुकमा रेड्डी प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में रहने वाली 9वीं जमात की तालिबा 3 दिन की छुट्टी होने पर अपने घर गई थी। तालिबा ने वार्डन से टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए बातचीत की थी। इस दौरान वार्डन की जानिब से लड़की को फोहश पैगाम भेजा गया। वार्डन की हरकत से हैरान लड़की ने अपने वालिदैन को इस वाक़े की इतला दी। बताया गया है कि
तालिबा के अहल खाना स्कूल इंतजामिया से रुजू हुए और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए वार्डन को फौरी तौर पर बरतरफ करने का मुतालबा किया। दरी असना स्कूल के अहाते में वार्डन नजर आने पर तालिबा के वालिदैन और रिश्तेदार उस पर टूट पड़े और बुरी तरह से उसकी पिटाई कर दी। इब्राहिमपट्टनम के कांग्रेस एमएलए माल रेड्डी रंगारेड्डी पर तालाब के करीब रिश्तेदारों की ज़मीनों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुल का नक्शा तब्दील करने का इल्ज़ाम किसानों ने एमएलए के हामियों की जानिब से उन्हें धमकियां दिए जाने का इंकशाफ किया। ज़राए ने बताया कि इब्राहिमपट्टनम के एमएलए माल रेड्डी रंगारेड्डी के आबाई गांव थुरूर में तालाब के करीब उनके रिश्तेदारों की अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुल का नक्शा तब्दील कर दिया गया है। किसानों ने बताया कि हुकाम ने वहां पर खुदाई की है, जिसकी वजह से सैलाब का पानी उनके खेतों में पहुंच रहा है और उनकी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। किसानों ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि इस मसले पर नाराज़गी का इजहार करने पर एमएलए के पैरोकार और एमएलए के दामाद उन्हें धमकियां दे रहे हैं। एससी जुमरे की दर्जाबंदी के सिलसिले में साबिक वजीर चंद्रशेखर ने सीता अक्का और पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। ज़राए ने बताया कि साल 2011 की आबादी के मुताबिक एससी जुमरे की दर्जाबंदी करने की दरख्वास्त लेकर साबिक वजीर चंद्रशेखर, सतीश मादिगा, मेरी मादिगा, वरप्रसाद ने एससी कमेटी के अरकान वुज़रा सीता अक्का और पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। इन कायदीन ने वुज़रा से ये दरख्वास्त की है कि वो एससी की दर्जाबंदी करवाने के लिए इक़दाम करें। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हैदराबाद में बड़े पैमाने पर मरकजी मिलाद जुलूस निकाला गया। शुरका ने सब्ज़ परचम लहराते हुए मिलाद की खुशियां मनाई। पुलिस की जानिब से वसीतर इक़दाम किए गए थे। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी मिलाद जुलूस जुमेरात 18 सितंबर को तारीखी मक्का मस्जिद से निकाला गया। सैयद अहमद पाशा खादरी मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सब्ज़ झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना किया। मरकज़ी मिलाद जुलूस चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, नया पुल, सालार जंग म्यूजियम, दारुशिफा चौराहा, पुरानी हवेली, मंडी मीरालम, एतबार चौक, कोटला आलिजा और बीवी बाजार से गुजरता हुआ वॉल्टा चौराहा पहुंचकर ख़त्म हुआ। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से महकमा पुलिस और दीगर महकमा जात की जानिब से इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां की गई थी। बताया गया है कि तारीखी मक्का मस्जिद से जुलूस गुजरने के पूरे रास्तों पर तकरीबन 19 खैर मक़दमी स्टेज भी लगाए गए थे। उलमा व मशाइखीन की बड़ी तादाद और आशिक़ाने रसूल की कसीर तादाद ने जुलूस में शिरकत की। दूसरी जानिब शहर के कई इलाकों से छोटे जुलूस निकाले गए जो कि मरकज़ी जुलूस में शामिल हो गए। मरकज़ी मिलाद जुलूस के ज़िमन में पुलिस की जानिब से ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई थी। तेलंगाना में बिजली मुहैया करवाने वाली कंपनियों ने 1 अरब रुपये का खसारा होने का इंकशाफ करते हुए बरक़ी बिल्स में इजाफा करने की तजवीज़ पेश की है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। नमक हो, दालें हो, सब्जियां हो या फिर तेल हो, सबकी कीमतें बढ़ रही हैं और आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना में बरक़ी सारिफीन पर एक और बोझ पड़ेगा। जल्द ही बिजली के नर्ख में इजाफा होने का इम्कान है। ज़राए ने बताया है कि तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने हुकूमत से रियासत में बरक़ी चार्जेस पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त की है। माली साल 2024-25 की सालाना आमदनी पर मुश्तमिल रिपोर्ट तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी काउंसिल को पेश की गई है। डिस्कॉम की जानिब से तीनों ज़ुमरों में बरक़ी चार्जेस पर नज़रसानी करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। तेलंगाना में जनूबी और शुमाली डिस्कॉम्स ने इस साल अपनी आमदनी और अखराजात के दरमियान कमी का इंकशाफ किया है। डिस्कॉम ने 14,222 करोड़ रुपये के खसारे का तखमीना लगाया है और रियासती हुकूमत से कहा है कि वो कुल खसारे की रकम में से 13,022 करोड़ रुपये सालाना बजट के ज़रिए फराहम करें और बकाया 1,200 करोड़ रुपये के खसारे को चार्जेस की नज़रसानी से पूरा करें।
शेर हैदराबाद में एक्साइज पुलिस ने इंजीनियरिंग के 3 तालिब इल्मों को मंशियात फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए ने बताया कि एक्साइज DTF पुलिस ने 3 नौजवानों को मंशियात फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। नौजवानों ने आसानी से पैसा कमाने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया था। बताया गया है कि वो जुबली हिल्स के माधापुर रोड नंबर 37 पर मंशियात फरोख्त कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और 70,000 रुपये की मंशियात जब्त की गई हैं, जिसमें 30 LSD की गोलियां भी शामिल हैं। बताया गया है कि इंजीनियरिंग के ये तालिब इल्म चेन्नई से मंशियात खरीद रहे थे और उसे हैदराबाद में लाकर फरोख्त कर रहे थे। दिल्ली के शांतिवन इलाके में एक कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 तलबा समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 तलबा सालगिरह मनाकर गुरुग्राम से वापस लौट रहे थे कि शांतिवन इलाके में उनकी कार को हादसा पेश आया। तलबा समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई तफ्तीश से ये बात सामने आई है कि ड्राइवर ने अपने मोबाइल फ़ोन पर गाना बदलने की कोशिश की। इस दौरान वो गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी एक साइड रेलिंग से टकरा गई, जिससे शदीद नुकसान हुआ। इत्तला मिलने पर दिल्ली पुलिस के एहलकार मौके पर पहुंचे और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आगाज किया। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा बिन मोहम्मद सलमान ने वाज़ेह किया है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुक़ात क़ायम नहीं किए जाएंगे। बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी मजलिस शुरा के सालाना इजलास से अपने वालिद खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अजीज़ की जानिब से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी कौम के ख़िलाफ़ इसराइल के संगीन हमलों की वो शदीद मज़म्मत करते हैं। मसला फ़लस्तीन सऊदी अरब की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक के वो शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों के लिए राह हमवार कर रहे हैं। उनका कहना था कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुक़ात क़ायम नहीं किए जाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।